جی السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں جی کاظمی صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور اس وقت ہم ڈی چوک اسلام آباد میں موجود ہیں اور جماعت اسلامی کا ادھر دھرنے کا اعلان کیا ہے مہنگائی کے حوالے سے۔ تو کافی سارے لوگوں کو کاظمی صاحب کافی سارے لوگوں کو گرفتار بھی پولیس نے کیا، یہ دیکھا آپ نے، پولیس بھی آئی ہے، کیا کہیں گے آج کے حوالے سے؟ اس میں اصل میں جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، ابھی ہم ادھر ہیں ڈی چوک پر ہیں جی اور ڈی چوک پر جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں، میں ناظرین یہ دیکھیں، یہ صورتحال جو دیکھیں، یہ وین آئی ہوئی ہیں، یہ سارا ادھر کنٹینر لگا کے یہ بند کر دیا گیا ہے، یہ سارے کا سارا پولیس کی پاری نفری یہ ساری موجود ہے جی ایڈمنسٹریشن جی جو آفیسرز ہیں وہ یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے یہاں کا دورہ کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی دونوں کا آج احتجاج تھا۔ جی جی پی ٹی آئی کا تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا، بہرحال اب وہ جو قیادت نے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ میں خود پی ٹی آئی کا ہوں، مگر قیادت کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کبھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب تک ہمارے حضرت عامر فاروق صاحب حضرت عامر فاروق صاحب جب تک چیف جسٹس ہیں، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہاں پر کوئی کوئی مجبوری میں اگر کوئی ہمیں ریلیف دے دیں، جب وہ بالکل اینڈ پر اگر ہو جائے، جس طرح کے سائفر کا کیس تھا، جی اس میں بالکل بھی ان کے پاس کوئی آخر میں کوئی آپشن ہی نہیں رہا تھا کہ انہوں نے پھر اس کا فیصلہ دیا۔ آج جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی، جماعت اسلامی کو بھی اجازت نہیں ہے، مگر جماعت اسلامی جو ہے اس نے ہلچل مچائی ہوئی ہے پورے شہر میں، پورا شہر جو ہے اس وقت محصور ہے، بند ہے جی، سارے روڈ بند ہیں، روڈ بند ہے۔ بڑی مشکلوں سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں اور پولیس جو ہے یہ آپ دیکھیں ابھی نئی وینز آئی ہیں، یہ نئی وینز آئی ہیں، یہ کہ جماعت اسلامی کا جو چل رہا ہے، جی جی ان کا جلوس چل رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ سخت پریشان ہیں۔ اور آج جو ہے میرے حساب سے جو ہے آج پی ٹی آئی کو بھی یہ موقع جو ہے بڑا بہترین موقع تھا اور ان کو میدان میں رہنا چاہیے تھا ہم کو، اور ہمیں جو ہے پوسٹ پون نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ قیادت کا فیصلہ ہے، اس پہ میں بات نہیں کرتا ہوں، مگر ہمیں پی ٹی آئی کو آج احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ یہ اسی طرح ہوتا رہے گا، کسی ایڈمنسٹریشن یا تو ہمیں اجازت دے گی اور اجازت دینے کے بعد واپس لے لے گی، اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ چلتا رہے گا ان کے ساتھ جو تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ عوام کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، یہ آئینی حق ہے عوام کا کہ وہ احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، اور اس میں جو ہے وہ بالکل اس میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، سارا کچھ ہے، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے روکنا غیر قانونی کام ہے، کیونکہ اس وقت حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سب غیر قانونی کام کر رہے ہیں، تواتر سے غیر قانونی کام کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی ان کو روک ٹوک نہیں ہے، اور وہ بندوق کے زور پر سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ جی، کیونکہ ایک فارم 45 پورے پاکستان کو پتہ ہے، فارم 45 کی جو کامیاب جو ممبران ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور فارم 47 کے جو چیٹرز ہیں، جو جعلی لوگ ہیں، وہ اندر ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جو وزیر اعظم ہے اس کو 350 سیٹس میں سے نون لیگ کو 17 سیٹیں ملی، 17 سیٹوں پر وہ وزیر اعظم ہے، اور اسی طرح سے 33-34 جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ملی ہے، اور یہ ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت حکومت کر رہے ہیں، ساری جعلی حکومت، غیر قانونی حکومت، اور ان کی جو ہے یہ جتنے بھی جو یہ فیصلے کر رہے ہیں یہ سب جو ہے کینسل ہو جائیں گے۔ کاظمی صاحب آپ نے دیکھا کہ ادھر جماعت اسلامی والے جو ورکر ہیں کچھ تھے بھی یا نہیں تھے، جن کی داڑیاں تھیں ان کو پبلک پکڑ کے یہ پرویزل وین کے اندر بند کیا، تقریباً 35-40 تو ہماری نظروں کے سامنے انہوں نے بند کیے، ہمارے سامنے بند کیے ہیں۔ آپ کچھ دن پہلے ادھر ٹی ایل پی کا آیا تھا، انہوں نے احتجاج کے لیے وہاں پہ دھرنا دیا تھا فیض آباد میں، تو روٹیاں بھی آ رہی تھی، کیمپ بھی لگانے دیے، دفعہ 44 کا بھی نفاذ نہیں ہوا، کسی نے کسی کو کچھ نہیں کہا، تو بڑے پرامن طریقے سے اور باقی دوسروں کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں
मसला ये है कि मैं उस पे जो है ना जो जमात इस्लामी के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं पास्ट में इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बहुत बेहतरीन खुशगवार ताल्लुकात रहे हैं जमात इस्लामी के। अच्छा जी। मगर अब जो सूरत हाल है उसमें जमात इस्लामी भी मजबूर हो गई है कि वो अवाम की आवाज़ बने, क्योंकि अवाम का एक प्रेशर है। आप देखें कि महंगाई किस आसमान से भी ऊपर चली गई है। महंगाई, लोग जो है खुदकशियाँ कर रहे हैं, घरों में एक वक्त का खाना। एक भाई ने दूसरे भाई का गला काटा फैसलाबाद में बिजली के बिल की वजह से। भाई वो तो आप मीडिया में रिपोर्ट हो गया ना, मीडिया में जो रिपोर्ट नहीं हो रहे केसेस, उनका आप सोचें कि जी वो कैसे। अब TLP की आपने तहरीक लब्बैक की बात की, तो तहरीक लब्बैक जो है वो चाबी वाला खिलौना है। जब आप उसको चाबी देते हैं तो वो ठट 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 फिर वो डांस शुरू कर देता है। सही। तो उसको जब चाबी दी गई हमारे हैंडलर्स ने, उन्होंने कहा कि आओ पुत्रा इत्थे आके बैठ जाओ। उधर आ गए, उसके बाद उनको खाना, आसाइशें, उनको बेहतरीन शरबत, बेहतरीन पानी, जो फिल्टर पानी होता है वो उनको मिला, और उसके बाद जो है उनको वहाँ से जो है रुखसत कर दिया गया। रोटियां भी मिलती रही हैं, पता चला कि रोटियां भी मिलती रही, अच्छी रोटियां मिलती रही हैं। और लास्ट में ये हुआ कि लास्ट टाइम उनको पराठो मिली थी, तो अब पता नहीं क्या है, पराठों से ऊपर होगा या पराठों से नीचे होगा। वो उनको फ़लस्तीन जो है 1 साल बाद याद आया। 1 साल पहले उन्होंने एक जुलूस निकाला और उसके बाद वो अंदर चले गए, और उसके बाद जो है फिर वहाँ से उन्होंने देखा कि जी भाई फ़लस्तीन पर जो है कोई, अच्छा फ़लस्तीन बहाना था, क्योंकि फ़लस्तीन तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका इशू ही नहीं, और हमारी गवर्नमेंट कोई फ़लस्तीन के कॉज को सपोर्ट ही नहीं कर रही। जो वहाँ पर जो इस वक्त कुछ तो खून है, उसको तो हमारी हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही है, उसके खिलाफ नहीं है। तो वो अब आए हैं 1 साल के बाद, और 1 साल के बाद जो है वो फिर यहाँ पर आए और उनको फ़लस्तीन याद आया। नाम फ़लस्तीन था, मसला था इमरान खान। लेकिन उसके साथ काज़िम साहब ये है ना कि जो हुकूमत के साथ उनकी बैठक हुई और उन्होंने जो इसराइली मसनूआत थी उनका भी बाईकाट करने का ऐलान किया उनकी करारदाद के मुताबिक, और दूसरा उन्होंने दहशतगर्द रियासत भी उसे करारदाद, तो उस बेस पे वो वापस गए हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मसला ये है, मैं तो आपको बात कर रहा हूँ ना कि उन्होंने सामने जो है रखा फ़लस्तीन, और पसे पर्दा कुछ और था। पर्दा जो है वो इमरान खान था, क्योंकि इमरान खान है पाकिस्तान में, तो सिर्फ इमरान खान है, इमरान खान मसला है। ये जितना माफिया है, ये स्टेटस को है, जितना सिस्टम है, वो अगेंस्ट इमरान खान है, और वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इमरान खान काज़मी साहब जो PTI की आदत है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कैंप लगा के भूख हड़ताली कैंप लगाया हुआ है। जो पब्लिक है, पब्लिक बातें कर रही है कि इन्हें बाहर वहाँ पे D चौक में या किसी और जगह बाहर आके एहतजाज करना, बाहर आके इन्हें कैंप लगाना चाहिए। ये उधर बैठ गई, उधर तो पब्लिक भी नहीं जा सकती। नहीं, मसला ये ना कि बड़ा एग्रेसिव स्टैंड लेना पड़ेगा क़यादत को, ऐसे नहीं है इतने आसानी से। ये देखें ना, ये माफिया है, माफिया को आप ये सोचें कि अगर इमरान खान आ जाता है तो इनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल फॉर माफिया। तो उनको पता है कि जी अब जब ये सब कुछ पता है तो वो तो पूरा जोर लगा देंगे, आपको रोकेंगे, हर तरह से रोकेंगे। तो हमें एग्रेसिवली आगे आना चाहिए, और उस पर जो है वो अपना जो है रद्द अमल, अपना एहतजाज जो है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। और काज़मी साहब, आप कब तक देख रहे हैं कि इमरान खान जो है ये बाहर आ जाएंगे? कब तक आ जाएंगे बाहर? उसूलन तो उनको अभी तक बाहर होना चाहिए था, आईनी तौर पर। जिस तरह के केसेस हैं, जिस तरह से वो साइफर में आप देख लें, साइफर के बाद जो है जितनी सुबकी हुई है हुकूमत की, वो तो काज़मी साहब जितनी इन्होंने FIR खान साहब पे दे दी इमरान खान पे, इमरान खान का उस तरह पूरी ज़िंदगी ये ट्रायल होता रहेगा, ट्रायल चलता रहेगा। वो आपको भी पता, आप भी फौजदारी वकालत करते हैं, दूसरी भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो इन मुकदमा से इतनी जल्दी जान छूटने वाली नहीं है। क्या उनको खान साहब को जैसे देखें ना कि 9-12 मुकदमात में जो हाई कोर्ट ने आर्डर दिया, उधर एक और दे दिया वो मिलिट्री वाला, तो ये छुपन छुपाई जो खेली जा रही है कब तक खत्म होगी? छुपाई मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लामाबाद में जो है PTI का 1 लाख का मजमा आके बैठ गया। आप देखें कैसे फैसले, आप देखेंगे कि किस तरह से कौन आगे बैठाएगा? कोई लीडरशिप में हमारा है, ऐसा बैठेंगे? लीडरशिप को बिठाना चाहिए ना। लीडरशिप, जब वो लीडर हैं, अब वो लीडर भी बन गए सारे, और बड़े ज़बरदस्त लीडर हो गए। पहले उनको
ज़्यादा लोग पहचानते भी नहीं थे। तो लीडरशिप जो है उसको ये करना है और लीडरशिप करेगी, लीडरशिप कॉल देगी। इमरान खान ने 10,000 दफ़ा कहा है कि भाई आप जो है बाहर निकलो। तो यहाँ पर जो है 1 लाख का मजमा आ जाए, उसके बाद आप देखें दमादम मस्त कलंदर, सब बातें मानी जाएंगी। ठीक बात कर रहा हूँ, देखो मौलवी साहब ने भी उसकी हाँ कर दी। तो अब ये सिलसिला है। अब जी। मुझे नहीं पता कि मौलवी साहब कौन से इदारे के हैं, मगर ये कि बाहर अच्छा, तो ये सूरत है क्योंकि इदारे फिर रहे हैं। तो अदालत तो फिर रहे हैं, सारी एजेंसियों के भी लोग हैं, पुलिस वाले भी बकाए। तो मीडिया से कैपिटल न्यूज़ पॉइंट से अरे जी, वाह, वाह। जबरदस्त जबरदस्त, क्योंकि इधर है ना, आपको पता है किस तरह के सिलसिला चल रहा है ये। तो ये सूरत हाल है। तो सिंपल ये है, इसका खुलासा ये है कि जब आप अच्छा ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे तो इमरान खान साहब बाहर होंगे। अगर आप लूला लंगड़ा एहतजाज करेंगे तो इमरान खान साहब को ये बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान के बाहर आने का मतलब है स्टेटस को की मौत, सिस्टम की मौत। ये जो आज फॉर्म 47 के जो लोग बैठे हुए हैं, जो 17 सीट वाला जो है नून लीग का वो वज़ीर आज़म बना हुआ है, तो वो इस तरह नहीं जाएंगे। सिंपल है। जी नाजरीन, हमारे साथ रहिए। सर, जो आजकल पीटीआई के साथ कोर्ट में दोबारा पेश किया जा रहा है, जैसे इमरान खान साहब का दूसरा बीबी सादा का केस था, इधर केस, ठीक है, वो केस भी बरी, उस केस में भी इनको बरी कर दी गई, और ये दिन ब दिन इनके ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये नहीं, इसमें देखें ना, जो इद्दत वाला केस है, शर्मनाक केस है। आप समझते हैं ना, इद्दत वाला केस तो एक पर्सनल होता है, खातून का जो है इद्दत तो वही खातून को पता है ना, तो वो तो एक शर्मनाक है। मतलब आप इतने नीचे गिर गए, लोएस्ट लेवल पर आ गए आप बेगैरती के, कि आपने इतना गलत केस किया है। तो सर, जैसे कि इस केस के दौरान खबर मानिका साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने बुशरा बीबी को तलाक देने के बाद काफ़ी तकरीबन 14 दिन बाद अपने बच्चों को बताया था, और मैंने ये ऐसी बातें भाई, औलाद से छुपानी चाहिए। खबर मानिका या कोई तीसरा चौथा बंदा, उसको आप उठा के ले जाएं, ड्राइंग रूम में आप बंद करें, उसके साथ जो है फिर वो हरकत करें, तो वो तो जो आप कहेंगे वो बाहर निकल के स्टेटमेंट दे देगा। खबर मानिका की क्या मजाल थी कि वो जैसा उसको बताया गया है उस तरह का वो स्टेटमेंट ना देता, ठीक है ना जी। तो खबर मानिका उसी हिसाब से चला है ना, उसने अपनी भी जान बचानी थी। अब उस पहले कोई बयान दे रहा है कि जी दूसरा बीबी का कि जी इससे ज़्यादा पाक और मुत्तकी औरत नहीं है, और फिर ये दे रहा है। तो ये तो आवाम देख रही है कि उसको किस प्रेशर में, किस